اور اس کے تحت 3 MPO کے تحت بھی مجھے بتایا گیا, میں اوپر آ رہا تھا, تو کچھ مقدمے جو ہیں 3 MPO کے تحت بھی مقدمے جو ہیں وہ 10 مقدمے جو ہیں وہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ کرنے کے احکامات صادر ہو چکے ہیں اور وہ FIRs ہو چکی ہوئی ہیں سارا کچھ. تو یہ ہے ایک جمہوری ملک میں جہاں کے انڈرسٹینڈبلی جمہوریت ہے, وہاں آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پرامن احتجاج کرنے سے بھی روکنے کے لیے تمام صوبے میں سیکشن 144 جو ہے اس کا نفاذ کر دیتے ہیں. CCTV فوٹیجز جو ہیں اس کے غائب ہونے کا, ابھی عدت کے جو فراڈ ہوا ہے الیکشنز میں, اس فراڈ کے میجر کنسٹیٹوئنٹس میں سے ایک کنسٹیٹوئنٹ ثابت ہوا ہے ایگزیکٹو سے ROs کا لینا. اور آخر میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہوا تھا. تو ان تمام شواہد کی بنیاد کی بیسس کے اوپر ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نہایت احترام کے ساتھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو, تو شاید ان کیسز میں ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں PTI یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں, وہ بنتا نہیں ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, لیکن میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا اور ان کی فیملی کا, عمران خان, PTI اور PTI کے بارے میں. اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں, سمجھیں اور اینالائز کریں تو شاید ان کیسز میں ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں PTI یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں, وہ بنتا نہیں ہے. ایک سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ تھا جس نے ایک ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے, مجھے یاد نہیں کب تھی, چیف جسٹس گلزار صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی ایسے کیس میں بینچ میں شریک نہیں ہوں گے, اس کا فرد نہیں بنیں گے, ممبر نہیں بنیں گے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہو. ہم یہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیومنٹ سارے پرووائڈ کر سکتے ہیں, مانگ لیجئے گا, رضوان صاحب یا سبقت صاحب آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. جس سے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے بارے میں کسی کیس میں ایک ممبر کے طور کے اوپر بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ کا سمبل جو ہے وہ لیا تھا, اور بیٹ کے سمبل کی ریویو پٹیشن تو ہم نے بہت دیر سے دی ہوئی ہے, اس کو لگانے کی بجائے انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک لیٹر لکھا تھا, اوپن لیٹر لکھا تھا, جس نے انہوں نے بتایا تھا کہ جی بیٹ کا سمبل PTI سے ہم نے صحیح لیا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش کی تھی. اور انہوں نے یہ بھی ڈینائی کیا تھا کہ PTI سے ہم نے کوئی اسپیس جو ہے وہ لی ہے, بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آزادی دی گئی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ان کا باعث شو کرتی ہیں. چیف برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر لکھنا جو ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, ہمارے پاس بھی اس کی کاپی ہے, وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے اندر جتنی بھی کیسز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات انہوں نے 9 مئی کو ریفر کیا ہے, اور جب بھی یہ 9 مئی کو ریفر کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ PTI نے 9 مئی کرنے کی ذمہ دار ہے. تو یہ بھی ان کا ایک انہیرنٹ بائس جو ہے وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں PTI کو 9 مئی کی ریفرنس سے, جبکہ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کا اس وقت تک تعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہ ہو, اور وہ تمام شواہد دے کے اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, پھر اس کے بعد جو اس کے مجرمین ہیں ان کو ان کے گناہ کے مطابق یا ان کی جرم کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے. تو یہ بھی ان سے بھی ان کا ایک جو باعث ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ 184(3) کے تحت جتنے بھی کیسز جو ہیں سنے گئے ہیں وہ تمام کو لائیو سٹریم کیا جاتا ہے, لیکن جب خان صاحب کی باری آتی ہے تو وہ لائیو سٹریم نہیں کیا جاتا. یہ ایک پیٹنٹ باعث ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جب خان صاحب کے کیس کو کیوں نہیں لائیو سٹریم کیا جائے جیسے کہ باقی تمام کیسز جو ہیں. اگر قانون سب کے لیے برابر ہے, اگر سپریم کورٹ جو ہے جب ججمنٹ ڈسپینس کرتی ہے تو سب کے لیے ایک ہی قانون کے مطابق کرتی ہے, تو پھر وہ خان صاحب کے بارے میں جب ان کی بات آتی ہے تو کیوں وہ قانون بدل دیا جاتا ہے, کیوں ان کا باعث جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو ہم یہ بھی ان کے اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ خان صاحب یا ان کے بارے میں کیسز جو اس کے بارے میں ان کا ایک انہیرنٹ باعث ہے. اس کے علاوہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ ہے ان کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو منی ٹریل دی ہے اس کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں, یہ منی ٹریل نہیں ٹھیک. کورٹ ججمنٹ دیتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں, اور بیگم عیسیٰ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ جی مجھے ڈاؤٹس ہے اس کے بارے میں اور میں اس منی ٹریل کو نہیں مانتی. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ موجود ہے, اس کے واؤچنگ ڈاکیومنٹس جو ہے. اس کے علاوہ خان صاحب کو بطور پرائم منسٹر ریموو کرنے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, اور وہ بیسس انہوں نے بنایا تھا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے. کورٹ کی ججمنٹ ایک ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کے بالکل کانٹریری جو ہے وہ بیان دے رہی ہے کہ جی ان کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ریموو کیا جائے.
इसके अलावा इसी चीज के सिलसिले में इन्होंने उनको कहा था जी कि आप मेरे साथ लाइव टेलीविजन के ऊपर आके बात करें, मैं आपको बताती हूं कि मैं क्यों ये कह रही हूं। इसके अलावा बेगम ईसा ने इमरान खान साहब को एक लेटर लिखा था, वो लेटर भी हमारे रिकॉर्ड में यहाँ और वो मीडिया में भी रिपोर्ट होया हुआ है, और उन्होंने उनको ये कहा था कि आप रियासत मदीना को कैपिटलाइज करना बंद कर दें। बेगम ईसा ने खान साहब को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, डिमांड किया था कि आप रियासत मदीना को कैपिटलाइज करना बंद कर दें। इसके अलावा जो एक और चीज है वो है आरओज जो थे उनके बारे में केस जो था वो डिसाइड किया था कि आरओज जो हैं वो जुडिशरी से लिए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने अंडर काजी फाइज ईसा इंटरवीन करके वो जो फैसला था उसको नल एंड वॉइड कर दिया था, और इन्होंने एग्जीक्यूटिव से आरओज जो है वो अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया था, जो फ्रॉड हुआ है इलेक्शंस में उस फ्रॉड के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स में से एक कंस्टिट्यूएंट साबित हुआ है एग्जीक्यूटिव से आरओज का लेना। और आखिर में जो पॉइंट है वो है कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान हुआ था। तो इन तमाम शवाहिद की बुनियाद की बेसिस के ऊपर हम काजी फाइज ईसा साहब से नहायत एहतराम के साथ डिमांड करते हैं कि वो अपने आप को पीटीआई और इमरान खान के केसेस से रिक्यूज करें। आपके पास सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फुल स्ट्रेंथ के ऊपर है, बाकी जज साहिबान मौजूद हैं, उनको आप इन्वेस्टिगेट करने दें, उनको आप केसेस सुनने दें और उनको फैसले सादर करने दें। ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती तो फिर हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि काजी फाइज ईसा साहब अपना जो बायस है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं बाय इंसिस्टिंग ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बेंचेस जो कि पीटीआई या इमरान खान साहब के केसेस जो है वो सुन रहे हैं। तो एक क्रेडिबल जज की हैसियत से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काजी साहब फौरी तौर के ऊपर अपने आप को पीटीआई और इमरान खान साहब के केसेस से अलहदा कर लेंगे। इसके अलावा 2-3 और पॉइंट्स हैं, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नैब के बारे में जो उन्होंने उनकी सबमिशंस हैं वो शुरू करें। लोगों की अबडक्शंस जो हैं वो जारी हैं। कल आपने देखा कि हमारे प्रोटेस्ट के मौके के ऊपर तमाम पंजाब में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। अब ये सेक्शन 144 पूरे सूबे में नाफिज करने का मतलब यह है कि उस वहाँ की हुकूमत ने अपनी नाअहली और नाकामी जो है उसकी कन्फेशन की है, माने हैं, और कहा है कि चूंकि हमसे कंट्रोल नहीं होता, ये पीटीआई वाले जो है ये बाहर निकल आते हैं और ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और इनको हमने पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने देना, इसलिए हम सेक्शन 144 नाफिज कर रहे हैं। और उसके तहत 3 MPO के तहत भी मुझे बताया गया, मैं ऊपर आ रहा था तो कुछ मुकदमे जो हैं 3 MPO के तहत भी मुकदमे जो हैं वो 10 मुकदमे जो है वो उन्होंने इंस्टीट्यूट करने के अहकामात सादर हो चुके हैं और वो FIR हो चुकी हुई है सारा कुछ। तो ये है एक जमहूरी मुल्क में जहाँ के अंडरस्टैंडेबली जमहूरियत है, वहाँ आप एक पॉलिटिकल पार्टी को पुरअमन एहतजाज करने से भी रोकने के लिए तमाम सूबे में सेक्शन 144 जो है उसका नफाज कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उसके गायब होने का, अभी इद्दत केस में अदालत ने कहा है जी कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो पेश की जाए, और अदालत को बताया गया है कि जी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही क्योंकि कैमरा खराब था। ये सेफ सिटी है इस्लामाबाद, यहाँ करोड़ा रुपया जो है वो इन्वेस्ट होया हुआ है इसको सेफ सिटी बनाने के लिए, और सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो उसका एक इनहेरेंट कंस्टिट्यूएंट होता है जिसकी बेसिस के ऊपर ये शहर को सेफ सिटी डिक्लेयर किया जाता है। अब मुझे बताया जाए कि क्यों सीसीटीवी फुटेजेस नहीं पेश की जा रही, उसमें क्या खौफ है हुकूमती कारिंदों को कि अदालत के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर भी उनका कैमरा जो है वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के वो काम नहीं कर रहा था। तो हमने वो फुटेज है वो हम आपको नहीं पेश कर सकते क्योंकि वो कैमरा जो है उसने रिकॉर्डिंग नहीं किया उसको। उसके पीछे एक सिनिस्टर प्लान है, वो ये है 9 मई है और उससे पहले भी हैं, कहीं भी जहां भी ये एलेज करते हैं कि पीटीआई वालों ने अटैक किया है या डैमेज किया है पब्लिक प्रॉपर्टी को, किसी एक जगह की सीसीटीवी फुटेज ये पेश नहीं कर सके। वजह सिर्फ एक है कि जो मुजरिमीन हैं उनके ऊपर पर्दा डालना जो है वो मकसूद है, और जो बेगुनाह हैं उनको 1 साल से ज्यादा तक वो जेलों में डालना जो है, और अभी पता नहीं कब तक उनको वहां रखने का इनका इरादा है। यानी जो असल जिन्होंने जुर्म किया है उनको महफूज करना, और जिन्होंने जुर्म के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, और यही वो वजह है कि ये जो जुडिशल कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, और एक फर्द वाहिद बैठ के कहता है जी ये मुजरिम है इसको पकड़ लीजिए। एक रात में 10,000 बंदे इन्होंने अरेस्ट किए हमारे, उनमें से बहुत सारे बंदे जो है 1 साल से ज्यादा तक जेलों में पड़े हुए हैं। एक मुकदमे में उनकी बेल होती है, वो अदालत से बाहर निकलते हैं, वहां फिर पकड़ लिया जाता है। सनम को और आलिया को और जो है हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद को दर्जनों दफा री अरेस्ट किया जा चुका हुआ है। ये किस जमहूरियत, किस आइन और किस कानून के तहत हो रहा है? हमारे वो लोग जो हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, महमूद रशीद साहब बैठे हुए हैं, एजाज चौधरी साहब बैठे हुए हैं, चीमा साहब बैठे हुए हैं, महमूद रशीद साहब पहले मैंने नाम दिया उनका, वो बैठे हुए हैं। किस जुर्म में बैठे हुए हैं वो? क्यों नहीं
वो जो मुकदमों की जो चलान है वो पेश किए जाते, क्यों नहीं मुकदमात आगे जाते? ताकि वो बेल ले सकें, ताकि वो बाहर आ सके। मकसद सिर्फ एक है कि हमने पीटीआई के बंदों को छोड़ना नहीं है। गुनाह उन्होंने किया है, जुर्म उन्होंने किया या नहीं किया, हमने उनको छोड़ना नहीं है। जब रियासत में इस हौलनाक किस्म की फस्तायत जो है वो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हमने जनरल ज़िया का भी वक्त देखा हुआ, वो भी कोई अच्छा वक्त नहीं था। कोड़े पड़े थे लोगों को, नंगे पिंडों के ऊपर उनको मारा जाता था, चिलचिलाती धूप में मारा जाता था, जेल के अंदर मारा जाता था, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर टुकटुकियां क्या कहते हैं, टुकटुकियां ही कहते हैं ना, वो लगाई जाती थी। हमने वहां भी इतनी फस्तायत, इतना जुल्म, इतना जबर और इतनी बर्बरियत नहीं देखी जितनी आज नहती बच्चियों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है। सनम को एक 50 डिग्री टेम्परेचर में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में प्रिजनर्स वैन में बिठाया जाता है, वो आग का एक डब्बा बन जाता है। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप बैठ के देखिए। उसको सनम को बिठाया जाता है, उसके घर ले जाया जाता है, उसको उसी आग के डिब्बे में बिठाए रहते थे और उसके सामने उसका घर तोड़ा जाता है, उसकी फैमिली को असॉल्ट किया जाता है। आप लोग बैठे हुए बताइए क्या वजह है? ये इस तरीके से अजाब मुब्तला करना चाहते हैं उन बच्चियों के ऊपर, उनको तकलीफ देना चाहते हैं। उससे किसको वाइकेरियस प्लेजर हो रहा है? कौन है जो कि खुश हो रहा है अपने महलों में बैठ के? उस औरत का नाम है मरियम नवाज। ये जाती उसकी कैद में है और उसका फेस जो है वो ऐसा है कि जी आपने रियासत की कैद में है, लेकिन ये उसकी जाती कैद में है, उसकी पर्सनल जो कैद है उसमें है ये बच्चियां। क्योंकि ये सोशल मीडिया के खिलाफ के ऊपर सच बयान करती थी, उसके बारे में सच लिखती थी, तो उसकी सजा ये बच्चियां 2 साल से काट रही है, 1 साल से काट रही है। कहीं तो अदालतें हमारी खड़ी हो जाएं, कहीं तो इंसाफ की खातिर खड़ी हो जाए, कानून की खातिर खड़ी हो जाए, आइन की खातिर खड़ी हो जाए। कब तक सोए रहेंगे जज साहिबान हमारे? हाँ, वो तो इसी में आ जाएगी मेरे ख्याल। उसका वो ब्रिगेडियर साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये ओवर टू यू सर, वो आप टेम्पर्ड एविडेंस जो है सर उसके ऊपर भी जरा आप ही कर दीजिएगा सर। मैं आप टेम्पर्ड एविडेंस